بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 206 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے قتل امین، خلیفہ امین کا قتل اور اس کے بعد کے حالات۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، امین کا ہر ایک لشکر کو مامون کی سپہ سالاروں کے مقابلے میں شکست پر شکست ہوتی رہی، اور مامون کے دو زبردست سپہ سالار طاہر بن حسین اور ہرشمہ بن عین بغداد کی طرف دو سمتوں سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ادھر موصل، واسطہ، کوفہ، بصرہ، حجاز، یمن، ہیرا وغیرہ صوبے میں بھی سب قبضہ سے نکل چکے تھے۔ امین کی خلافت اور حکومت صرف بغداد اور نواح بغداد تک محدود رہ گئی۔ مسلسل ناکامیوں کے بعد اب رمضان المبارک سن 192 ہجری سے امین کے لیے نہایت ہی نازک اور خطرناک زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ امین نے مجبور ہو کر طاہر کی فوج میں لشکروں کے پاس خفیہ پیغام بھیجے اور مال و اسباب اور انعامات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی سازش کی۔ چنانچہ طاہر کے لشکر سے جو نہر سرسر کے کنارے مقیم تھا، 5000 آدمی امین کے پاس بغداد میں چلے گئے۔ اس کے بعد بعض فوجی سردار بھی امین سے جا ملے۔ امین نے ان لوگوں کو جو طاہر کی فوج سے کٹ کر آ گئے تھے حزب لیاقت، انعام اور اکرام سے معزز کیا اور ایک زبردست فوج مرتب کر کے طاہر کے مقابلے کو روانہ کیا۔ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر امین کے لشکر کو حرمیت ہوئی اور مفروض بھاگ کر بغداد میں امین کے پاس پہنچے۔ امین نے ایک لشکر نئے آدمیوں کا، جن شکست آفتوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا، مرتب کر کے دوبارہ سرسر کی طرف روانہ کی۔ ان کو بھی شکست حاصل ہوئی۔ اب طاہر اپنی فوج لے کر سرسر سے اور ہرشمہ اپنا لشکر لے کر نہروان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ طاہر نے باب انبار پر ڈیرا ڈالا۔ ہرشمہ نے نہر یمن پر مورچہ جما دیا۔ عبداللہ بن وضع نے شاسیہ کے جانب اور متیس بن زبیر نے قصر کلوزی کی جانب پڑاؤ ڈالا۔ اس طرح مامون کے سرداران فوج نے بغداد کا محاصرہ کر کے اہل بغداد پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ادھر امین نے بھی اپنے طلائی، نقرائی، زیورات اور ظروف اور قیمتی سامان فروخت کر کے فوج کے روزینے تقسیم کیے اور مدافعت پر پوری کوشش صرف کی۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.25 برس تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں اہل بغداد اور امین کے سپہ سالاروں نے جو مصائب برداشت کیے اور جس مردوی سے مقابلہ کیا وہ ضرور قابل تعریف ہے، مگر یہ سب کچھ بے نتیجہ اور خلاف عقل کام تھا۔ سعد بن مالک بن خادم امن حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کو خندقیں کھدوانے اور مورچوں کو آگے بڑھانے کا کام سپرد کیا۔ معاصرین میں ہرشمہ اور طاہر دونوں بڑے سردار تھے، مگر طاہر اپنی فتوحات اور معرکہ آرائیوں میں بکثیت کامیاب ہونے کے سبب زیادہ شہرت حاصل کر چکا تھا، اور اس لیے وہی اس تمام فوج کا افسر اور سپہ سالار اعظم سمجھا جاتا تھا۔ امین کی طرف سے قصر صالح اور قصر سلیمان میں منصور بھی جو بغداد سے بحر دجلہ کے کنارے پر تھے، چند سردار متعین تھے جو معاصرہ فوج کے دمدوں اور مورچوں کو توڑنے کے لیے منجنیقوں سے آتش بازی اور سنگ باری میں مصروف تھے۔ طاہر کی طرف سے بھی ترکی ترکی سنگ باری اور آتش زنی کا کام ہو رہا تھا۔ رال کے جلتے ہوئے کولے اور پتھر طرفین سے پھینکے جاتے تھے۔ معاصر فوج جب قدر آگے بڑھ جاتی تھی، خندقیں کھود کر مورچہ بنا لیتی تھی۔ اس طرح بیرون شہر سے دائرہ کو تنگ کرتے ہوئے فصیل شہر تک پہنچ کر اور دروازوں کے ذریعے یا فصیل کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ پھر ہر محلہ اور ہر حصہ میں قدم قدم پر مقابلہ کرنا پڑا، حتیٰ کہ مدیر المنصور میں امین کو محصور کر دیا۔ غلہ اور ضروریات زندگی کا باہر سے شہر میں آنا بند ہو گیا تھا۔ جیل خانے سے قیدی چھوڑ دیے گئے تھے۔ شہر کے اوباشوں اور بدماشوں کو فوج میں بھرتی کر دیا گیا تھا۔
लूट मार, चोरी, डाका जनी का बाजार भी शहर में गर्म था। बासर सरदार और बहादुर सिपहसालार ताहिर की रेशा दवानियों और लालचों के जरिए बतदरीज अमीन के पास से जुदा होकर ताहिर के पास आते जाते थे। शुरफा शहर मौका पाकर शहर से निकलते जाते थे। बहुत से मोहल्ले वीरान हो गए थे। बनु कुतुबा, मोहम्मद बिन ईसा, यहिया बिन अली बिन ईसा बिन अहमान, मोहम्मद बिन अबी अब्बास ताई यकबा दिगरे ताहिर से जा मिले। जिन मकामों पर ये लोग मदाफत में ममूर थे वो मकामात भी ताहिर के सपुर्द करते गए। अमीन ने मदाफत में खूब इस्तकलाल की दिखाया। आखिर में इसने मोहम्मद बिन ईसा बिन नहेक को सपुर्द तमाम जंग का एहतमाम कर दिया था, जिस तरह अब्दुल्ला बिन वज़ा की फौज थी। इसी तरफ अहले बगदाद की नई भर्ती की हुई फौज ने हमला करके अब्दुल्ला बिन वज़ा को शिकस्त देकर शमासिया पर कब्जा कर लिया। हरिस्मा ये खबर सुनकर इस तरफ कुमक के लिए पहुंचा। इत्तेफाक से हरिस्मा को भी शिकस्त हुई और गिरफ्तार हो गया, मगर इसके हमराबियों ने धोखा देकर इसको रहा करा लिया। ये हालत सुनकर ताहिर खुद इस तरफ पहुंचा और एक जबरदस्त फौज हमला करके अमीन के लश्कर को पसपा किया और अब्दुल्ला बिन वज़ा को फिर इसके मोर्चा पर कब्जा करा दिया। ताहिर ने बतदरीज अपने लश्कर के तमाम शहर में फैला दिया और मदीना अल मंसूर में अमीन को मसूर कर लिया। अमीन नहायत सब्र इस्तकलाल से मुआसरे की सख्तियां बर्दाश्त करने लगा। अरकीन सुल्तानत में से सिर्फ हातम बिन सफरा, हसन बिन हरती और मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अगलब अफ्रीकी इसके हमरा थे। मोहम्मद बिन इब्राहिम ने अमीन से कहा कि इससे इस गिनी गई गुजरी हालत में भी 7,000 सवार अमीरुल मोमिनीन के हर एक हुक्म की तमील के मौजूद है। मुनासिब ये मालूम होता है कि उमरा अरकीन के लड़कों को मुंतखब करके इनका अफसर मुकर्रर करे और किसी दरवाजे से बहालते गफलत निकल कर जजीरा शाम की तरफ चले जाएं और एक जदीद सुल्तनत की बुनियाद रखें। मुमकिन है कि चंद रोज के बाद अवाम का मिलान तबाह आपकी जानब हो जाए और फिर कोई अच्छी सूरत हसूल मकसद की पैदा हो सके। अमीन इस इरादे के मुआफिक अमल दरामद कर लेता तो यकीनन इसका अंजाम इस अंजाम से बेहतर होता जो हुआ। ताहिर को जब अमीन की इस इरादे की इतला हुई तो इसने सुलेमान बिन मंसूर और मोहम्मद बिन ईसा बिन लबैक के पास पैगाम भेजा कि अगर तुमने अमीन को इस इरादे से बाज न रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। इन लोगों ने ताहिर से खैफ होकर अमीन की खिदमत में पहुंचकर अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन के लिए ये मुनासिब नहीं है कि आप अपने आपको इब्ने अगलब और इब्ने असफर की कब्जा में दे दें। ये लोग खाइन और गैर मोतबर है। मुनासिब यह है कि आप हरिस्मा बिन ऐन से अमन तलब करके इसके पास चले गए। इब्ने असफर को जब ये बात मालूम हुई कि खलीफा अमीन हरिस्मा बिन ऐन से अमन तलब करके अपने आप को इसके सपुर्द करने पर आमादा हो गया तो इसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप अगर ईमान ही तलब करते हैं तो ताहिर से तलब करें, हरिस्मा की अमान ना जाए। मगर अमीन ने कहा कि मैं ताहिर से अमान तलब नहीं करूंगा। चुनांचे हरिस्मा के पास पैगाम भेजा। इसने बखुशी मंजूर कर लिया, मगर ताहिर को जब ये बात मालूम हुई तो इसको बेहद नागवार गुजरा कि आखिरी फतह याबी का सिरा हरिस्मा के सर पर बंध गया। इसने नहायत सख्त पैरा मुकर्रर कर दिया कि अमीन महल सराय से ना निकल सके। हरिस्मा ने यह तजवीज दी कि रात के वक्त अमीन निकल कर इस किश्ती में जो इसके महल सराय के नीचे हरिस्मा लिए मौजूद होगा सवार हो जाए और हरिस्मा की पनाह में आ जाए। ताहिर की तरफ से इस किस्म की तैयारियां देखकर इसने अमीन के पास पैगाम भेजा कि आप आज रात सब्र करें, क्योंकि आज रात दरिया के किनारे मुझे कुछ ऐसी अलामात नजर आए हैं जिनसे खतरा पैदा हो गया। अमीन ने जवाबन कला भेजा कि मेरे जिस कदर हवा हमदर्द थे वो सब मुझसे जुदा हो चुके हैं। मैं एक साथ भी यहाँ क्याम नहीं कर सकता। मुझे अंदेशा है कि कहीं ताहिर को इसका इल्म ना हो जाए और वो मुझको गिरफ्तार करके कत्ल न कर दे। आखिर 25 मुहर्रम सन 198 को वक़्त शब अमीन ने अपने दोनों लड़कों को गले लगाया, प्यार किया और इनसे रुखसत होकर रोता हुआ दरिया के किनारे आया और हरिस्मा की जंगी कश्ती पर सवार हो गया।
रस्मा ने खुद जो कश्ती पर मौजूद था नहायत इज्जत और एहतराम से कश्ती में सवार कराया और अमीन के हाथ पर बोसा दिया और कश्ती चलाने वालों को रवानगी का हुक्म दिया। यूं ही कश्ती रवाना हुई, सामने से ताहिर की जंगी कश्तियों का बेड़ा सामने आ गया और हरिश्मा की कश्ती का मुआसरा करके लड़ाई शुरू कर दी। गोता जनों ने कश्ती में सुराख कर दिया और हमला आवरों ने हर तरफ से तीर बारी की, आकर कश्ती में पानी बहाया और वो डूब गई। रिश्मा के बाल पकड़कर मल्ला ने निकाला और डूबने से बचा लिया। अमीन पानी में तैरने लगे। इसको तैर के आदमी ने पकड़ लिया। अहमद बिन सालम तैर कर किनारे तक पहुंच गया। जब दरिया से बह निकला तो वो भी तैर के आदमी के हाथों में गिरफ्तार हुआ। अहमद बिन सालम का बयान कि वो मुझको गिरफ्तार कर ताहिर के सामने पेश किया गया, इसने मुझको कैद खाने में भिजवा दिया। थोड़ी रात गुजर गई थी कि ताहिर के सिपाही ने कैद खाना का दरवाजा खोला और अमीन को अंदर दाखिल करके फिर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त अमीन सिर्फ पजामा पहने हुए थे, सर पर अमामा और शानों पर एक बसीदा कपड़ा था। मैं इन्ना पाड़ कर रोने लगा। अमीन ने मुझको पहचान कर कहा कि तुम मुझको अपने गले लगा लो, मेरी तबीयत सख्त मतोश हो रही है। मैंने इसको गले लगाया। थोड़ी देर के बाद जब जरा इसको होश और हवास बजा हुए तो मुझसे मामूम का हाल दरियाफ्त किया। मैंने कहा वो जिंदा सलामत मौजूद है। अमीन ने कहा इसका वकील तो मुझसे कहता था कि मामून मर गया। गालिबन इससे इसका मदह ये होगा कि मैं इसकी जंग से गाफिल हो जाऊं। मैंने कहा अल्लाह ताला आपके वजीरों से समझे कि उन्होंने आपका धोखा दिया। फिर अमीन ने सर खींच कर कहा कि क्यों भाई, क्या ये लोग वादा अमान का इफा न करेंगे? मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा करेंगे। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि मोहम्मद बिन हमीद आया, दूर से खड़ा हुआ, देखता रहा और अमीन को पहचान कर वापस चला गया। इसके बाद आधी रात के वक्त चंद नजमी नंगी तलवारें लिए हुए कैद खाने में आए। अमीन इनको देखकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इनमें से एक ने लपक कर अमीन को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और जबा करके सर उतार लिया। सर लेकर चले गए। सुबह ही तो लाश को भी उठाकर ले गए। ताहिर ने अमीन का सर मंजर आम पर लटका दिया। जब लोगों ने अच्छी तरह देख लिया तो अपने चचाजाद भाई मोहम्मद बिन हसन बिन जरीक बिन मुसाब के हाथ खातमुल खिलाफत असा चादर के हमरा मामून के पास भेज दिया और शहर में अमन की मनादी करा दी। जुमा के दिन मस्जिद जामा में मामून के नाम खतबा पड़ा और अमीन की बुराइयां बयान की। मूसा और अब्दुल्ला बसरान अमीन को मामून के पास भेज दिया। इसके बाद ताहिर के लश्कर ने अपने रोजीने तलब किए, मगर जब वसूल ना हुए तो सरकशी और बगावत पर आमादा हो गए। ताहिर को बगदाद से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर अपने खास सरदारों को बुलाकर और एक जमीयत फराम करके बगदाद में दाखिल हुआ और अहले लश्कर को अतात पर मजबूर किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।